Good afternoon, everyone. I welcome you all in today's live session. The theme of this session is decoding the Atmanirbhar Bharat stimulus package. It's been more than 4 months now that the world is fighting against coronavirus. Most countries of the world, including India, has to put their economic activities on hold, which is damping to economic health of the countries and collectively to the world. In a world where countries are highly interdependent and interlinked, the ongoing situation has necessitated for India to become self-reliant. To revive the economy, which is badly hit by the COVID-19, recently Indian government has made major announcement under the Atmanirbhar Bharat special stimulus package. To help us understand what is in the package, who will benefit, how it will be benefited, and what more needs to be done, we are joined by our expert, Mr. Rakesh Lahoti. He is a co-founder of Wall Street Group and a chartered accountant by profession. Welcome, sir. It's a pleasure having you on today's live session. Thank you, Vikram, and thank you, Wall Street, for giving me this opportunity to share my knowledge and whatever that I have in my mind with all the viewers. Thank you, sir. So, the index of this session will be first we will go through the discussion and then it will be followed by the question and answers. So, sir, for the Indian perspective, how scary this issue is, the coronavirus issue is, how scary it is for the India? Vikram, you have rightly placed this question. What I feel is that before discussing on stimulus, I think it is the right thing that we discuss about the reason for the stimulus. So, what you have asked is how scary the issue or how scary the issue of corona is, and with Yes, respect to exactly. Indian perspective, correct? So, Yeah, what I would like to do is I would like to give couple of statistics, and then I can share my observation because what I feel is that nobody knows what is the gravity of issue and what can be the gravity of issue in time to come. So if I exactly. share some of the statistics, I think that would highlight statistics as well as some of the instances. Probably that would highlight the gravity of this issue. From the Yes. published facts, what we know is that total active cases in India are around 56,000, approximately 56,000. So I'm not going on a detailed number, but approximately 56,000. Out of that, 60%, which is a majority of it, is within five major districts, that is Mumbai, Pune, Thane, Chennai, and Ahmedabad. If we compare the total mortality also, like total deaths due to this coronavirus, in that case also total deaths are approximately or around 3,000 mark, of which again 60% is only into five major cities, I would say. So, if we compare the demographics or the geography of India, which has a population of 135 crores, probably 60% of majority of cases are concentrated only into five districts or five cities, and the rest of the country is not that seriously affected as of now. So, as I said, 135 crores. If we compare the population of these five major districts and cities, probably it comes to around 5 to 10% of the total population size. Now, if we look at that, these are the statistics. But in spite of this, we went for a lockdown. Okay? So, because of this lockdown, what we gained out of it, that is a question that is there in everybody's mind. So if we have to analyze it, we can just give a comparative number that China total cases reached up to 85,000 in 3 months. That was Jan to March. And in India, if we look at, in spite of an early lockdown, the cases went to 96,000 between March to May. So whether the lockdown has helped us or not, whether it has given us any benefit or not, is a major issue which all administrative authorities are also worried about that how to handle it. Why I am saying is, this numbers why I have given is that this lockdown is the major reason for all this turmoil and all this economic crisis that has again then led to the stimulus which we are going to decode or discuss in the coming part of this period.
Second part, some more facts if I give. There are various debates and discussions that whether this corona passes through touch therapy or not is a major question. Like I came across with 2 or 3 personal cases wherein I found that husband has a corona but wife is tested as negative. Same way, father son has a corona but the family grandson has tested negative. So whether the touch therapy is really happening or not is all those cases. So accordingly, a lot of asymptomatic cases were admitted to hospitals. Later on, they were relieved from hospital, saying that no, they don't have any kind of this situation. So I think that is the reason that what is the gravity and the scale of this in time to come, because touch therapy, which is the major worry factor, that time will tell us. But yesterday, Home Ministry came out with a very apt guidelines, wherein when they are implemented, probably it will balance between the corona problem versus opening up the economy and the normal life of the people. So I think that would ultimately help us. Let us see how it pans out. But at present, it is very difficult to say that what the scale would be and how it will ultimately pan out. Okay, thanks sir. The second question, in the पिछले जब इंटरव्यू में आपने अपनी बात हुई थी तब आपने बताया था कि एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को दे शुड स्टे पॉजिटिव. तो आप ये जो अभी स्टिमुलस आया है उसको आप कैसे डिकोड कर रहे हो अभी? विक्रम, अगर जो इसको डिकोड करना है ना, तो जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कुछ एक फिल्म की लाइन बताई थी, उसी हिसाब से इस बार भी एक फिल्म की लाइन सुन करके बताता हूँ. एंड विच आई थिंक वो लाइन पूरा मैसेज भी क्लियरली कम्युनिकेट कर देगा. वो ऊंची एक अपने मिस्टर नटवरलाल का गीत है जिसकी लाइन है, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं और राम के भरोसे है वो कभी भूखा मरता नहीं. आई थिंक दिस इज द short and sweet message to the whole stimulus. Going ahead, I'll split this line between 2 messages. But मुझे लगता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन पूरा स्टिमुलस मैसेज जो है उसको एप्टली कन्वे कर लेता है कि जो अभी 20 लाख करोड़ का मैसेज जो कम्युनिकेट किया है अपने ऑनरेबल एफएम ने, उसमें कितना दम है और कितना लोगों के लिए सेंस है ना. अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दूसरा ये मैं आगे इसको डिकोड करूं उसके पहले एक चीज और क्लियर कर दूं सो दैट अपने व्यूअर्स के साथ में आई कैन रिमेन कनेक्टेड. एंड वो ये कहना चाहता हूं कि आज अपने नॉर्मली देखते हैं तो लोगों के बीच में क्लियर कट डिवाइड है. आइदर दे आर एंटी गवर्नमेंट और दे आर प्रो गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप आता है या तो आधे लोगों को या कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है इरिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव्स, और कुछ लोगों को अच्छा स्टेप हो तो भी नेगेटिव लगता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स एंड एजेंडा. तो अपना इसको डिकोड का जो भी करना है एक्सरसाइज, उसमें विल गो न्यूट्रल. एंड आई थिंक जो पॉजिटिव्स है विल डिस्कस क्या पॉजिटिव्स है, और जो नेगेटिव्स है वो नेगेटिव्स को भी अपन विल ट्राई टू एनालाइज वेयर अकॉर्डिंग टू अस निर्मला जी और अवर एफएम ने मिस किया है. Okay. तो शुरू करने के लिए एज यू सेड के टू डिकोड द स्टिमुलस, अगर जो इस स्टिमुलस को डिकोड करना है तो पहले तो जिसने इसको कोड किया है उसको मिलना पड़ेगा. बिकॉज अगर जो आज अपन देखें तो इसमें कहीं पर भी स्टिमुलस नाम की चीज ये जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है उसमें कहीं भी दिख नहीं रही है. इसलिए इसको डिकोड करने के पहले मैं इस स्टिमुलस को आई मेक इट अ कॉम्बो बिटवीन अपने प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था आई थिंक 12 तारीख या 13 तारीख का, और उसके बाद में जो कंसिक्वेंशियल एफएम के जो स्टिमुलस अनाउंसमेंट्स थे उन दोनों का कॉम्बो करके अपन इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं. कमिंग टू जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, या जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 4 दिन या 5 दिनों में इस पैकेज को अनाउंस किया है, उससे जो एक स्थिति बाहर उभर के आ रही है which has been widely discussed also, that has corona broken the system or has corona exposed the broken system. ये एक बहुत बड़ा डिबेट आई थिंक विल ओपन अप, बिकॉज इस स्टिमुलस में जो एफएम के जो भी अनाउंसमेंट्स हैं उसमें स्टिमुलस कम और रिफॉर्म्स ज्यादा है.
आपने पूरा अगर जो 5 दिन का इसको प्रॉपर एनालाइज करें तो कहीं पर भी उसमें ये नहीं दिखता कि व्हाट आर द स्टिमुलस फॉर रिवाइविंग इकोनॉमी वो दे रहे हैं। उन्होंने जो भी अनाउंसमेंट्स किए हैं उसको इन फॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स ही दिए हैं। So it is a very clear message that our learned politicians need to learn, and I think it is very high time for them also to learn that making life, जो citizens हैं, making life of citizens is not the obligation of our government, but is rather I think citizens have voted them for making the life easy. तो जो पिछले वर्षों में जो उनको आज लगता है कि इतना, से फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, दे हाईलाइटेड विद अ वेरी लाउड वॉइस कि हमने कुछ सेक्शंस को डिक्रिमिनलाइज किया है, कुछ सेक्शंस में हमने ये ईज ऑफ बिजनेस लाई है, कुछ सेक्शंस में हमको इतने टाइम से लग रहा था कि ये बिजनेस को प्रॉब्लम्स है तो वो हमने इजी की है। तो एक जो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है ऑफ दिस स्टिमुलस पैकेज दैट हैज बीन अनाउंस्ड इज, तो अभी तक वो सारी चीजें क्यों नहीं हुई? So I think if you read the mindset of the government, that what present government thinks is that if they remove any complication, I think they treat it as a stimulus or a kind of benefit that they are giving to the people of this country, and that is the reason they have announced it in the part of the stimulus. They say probably it will stimulate the economy, but I think this was part of their earlier duties, which was not done at that time, which they have now bundled and packaged into this. So I think if we want to go into the detailed analysis of each and every announcements that they have made, तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट ये जो मैंने एक्सपीरियंस बताया आपको कि गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है, आई थिंक वो विचार और वो जो उनका माइंडसेट है, आई थिंक दैट दे विल हैव टू चेंज। मैं आपको इसको एक सिंपल उदाहरण में बताता हूँ कि हाउ द पीपल आर फीलिंग सफोकेटेड राइट नाउ इन आवर कंट्री। आज किसी भी कंपनी में सपोज कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को अगर जो आप ये बोलो कि भाई तुम अगर जो ड्राइवर रखोगे तो तुमको दलित ही रखना है, अगर जो दलित ड्राइवर है उसका टाइमिंग 10 से 5:30 के बीच में ही रहेगा, 5:30 से अगर जो आप ज्यादा रखते हो तो आपको एक लेटर लिख करके कंपनी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आप अगर जो ये चीजें नहीं करते हो तो आपके ऊपर ये एक्शंस लिए जाएंगे। उसके बाद में भी आपको सपोज 1x सैलरी मिल रही है तो आपकी परफॉर्मेंस 5x आनी चाहिए, आपने 5x की जगह 4x की है तो आपके अगेंस्ट में नोटिस इश्यू होगा। तो एक एम्प्लॉय की जो माइंडसेट, व्हाई आई एम गिविंग दिस इज एन एग्जांपल, इज कि एक कॉमन मैन से रिलेट कर सकती है कि आज एक अपना बिजनेस कम्युनिटी क्या फील कर रहा है। आज जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना कंप्लायंस ड्रिवन हो गया है कि हर चीज में देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस व्हिच आर देयर इनटू द सिस्टम। तो जब तक ईज ऑफ बिजनेस नहीं लेके आते हैं तब तक ये जो भी स्टिमुलस अनाउंसमेंट्स किए हैं, आई थिंक वो स्टिमुलस अनाउंसमेंट्स के कितना इफेक्ट आगे जाकर के करेगा इज गोइंग टू बी अ वेरी डाउटफुल और क्वेश्चनेबल थिंग। दूसरा जो लोगों को लग रहा है कि अभी भी अपनी जो गवर्नमेंट है that is working in a legacy or a mindset of a Britishers rule, wherein they felt that ruling Indians is the way of governing Indians. या अपन जो संस्कृत में कहते हैं कि भय बिना शासनम न भवति। आज जो सरकार का जो भी सिस्टम है, there the system has become so complex that everybody is worried about doing anything into this country. I'm talking about business community. And why I am saying so is that the government also exposed their mindset that in a package or in a bundle of stimulus, they have announced the reforms which they try to look into as a stimulus. So मुझे लगता है कि इसमें stimulus कम reforms ज़्यादा है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर जो इतनों को इसको स्टिमुलस को डिकोड करना है तो we'll have to combine both the announcements together, जो अपने बिलवड प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था और जो एफएम ने अनाउंस किया था। जो एफएम ने अनाउंस किया वो मैंने आपको उसमें जो भी क्षति है या जो भी डिफिकल्टीज है या लिमिटेशंस है दैट आई हैव शेयर्ड case to case. If you ask, so we will discuss on the case to case stimulus announcement that they have made. Now coming to the real part of stimulus which I feel in this whole system is जो अपने beloved PM ने अनाउंस किया है।
कि what we'll have to do is we'll have to become Atmanirbhar and we'll have to become vocal for local. We have seen the fan following of our beloved PM. उन्होंने थाली बजाने का बोला तो सब लोगों ने आकर के थाली बजाई, उन्होंने मोमबत्ती जलाने का बोला तो सबने मोमबत्ती जलाना किया। तो अगर जो ये सेम फैन फॉलोइंग और ये सेम अफेक्शन और एडिक्शन टुवर्ड्स पीएम, अगर जो ये इनके वोकल फॉर लोकल एजेंडा को भी अपनाता है, एंड इफ दे फॉलो दिस, आई थिंक दैट कैन अल्टीमेटली स्टिमुलेट द इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए डिमांड की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, और उसके लिए अल्टीमेटली योर बिजनेस हैज टू रिवाइव। तो अगर जो ये वोकल फॉर लोकल वाला जो एजेंडा उन्होंने अनाउंस किया था वो वर्क कर जाता है, तो आई थिंक दिस स्टिमुलस हैज सम मीनिंग इनटू इट। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पार्ट को टाइम विल टेल हाउ मच बेनिफिट इट विल गिव, whether these businesses what we are carrying on will be able to take benefit out of it or not, या वो सब चीजें। So I think it is very difficult for me to comment anything on it right now. और सर दूसरा पर्सपेक्टिव से देखिए तो गवर्नमेंट क्या क्या चीजें ला सकती है कि इकोनॉमी अपना बूस्ट करे पूरा, तो ऐसा कोई पैकेज लेके आया है अभी? तो कोई ऐसी चीजें आपके दिमाग में कि अगर ये सब कुछ चीजें आ जाए तो फिर इकोनॉमी रिवाइव हो जाए या बूस्ट हो जाए? देखो एक चीज मैं मेरा ऑब्जर्वेशन या मेरा सजेशन अगर जो यहाँ पर शेयर करने की इच्छा रखूं, तो वन गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट गवर्नमेंट हैड दिस टाइम वाज दैट अभी पूरी वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज आर इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इस टाइम पे अगर जो अपने यहाँ पर भी कोई बोल्डर रिफॉर्म्स लेके आते और उसके अगर जो थोड़े बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होते, तो इट वाज अ वेरी इजी फॉर देम आल्सो टू कवर अप बिकॉज ऑफ दिस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वेरी बोल्ड रिफॉर्म्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज वेरी वाइटल फॉर गवर्नमेंट टू ब्रिंग इन एट दिस टाइम। उसमें इन केस ऑफ स्टिमुलस बंडल अगर जो या स्टिमुलस पैकेज का पार्ट देखें, तो वन ऑप्शन विच आई कैन शेयर विद व्यूअर्स, जो मुझे लगता है व्हाट वाज एन ऑप्शन दैट वाज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट इज, आज गवर्नमेंट के पास जितने भी पीएसयू लिस्टेड एंटिटीज के स्टॉक है, फॉरगेट अबाउट अनलिस्टेड, जितने भी लिस्टेड एंटिटीज के स्टॉक है जिसमें आपके जितने भी नवरत्न आ गए, बाकी के कंपनी आ गए, पीएसयू बैंक्स आ गए, इन सब का गवर्नमेंट का स्टेक अगर जो अपन देखें तो वो गवर्नमेंट के स्टेक की वैल्यू तकरीबन ऐसा माना जाता है, मतलब नंबर्स हैज टू बी वर्कड आउट, बट इट इज समथिंग अराउंड 15 to 20 लाख करोड़ रुपीस के आसपास इन सब पीएसयू अंडरटेकिंग्स की वैल्यूएशन का अगर जो अपन रखें तो। नाउ गवर्नमेंट इफ दे वुड हैव एक्टेड स्मार्टली, तो उनके पास एक ऑप्शन था कि ये सारे स्टॉक्स को प्लेज करके कोई भी फॉरेन बैंक या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करके अगर जो भारत में लाते इस पैसे को, तो आज भारत में एक दिक्कत है, दैट इज लैक ऑफ कैपिटल। इंडिया इज अ डेफिसिट कैपिटल डेफिसिट कंट्री, और उसके कारण से अपना जो ग्रोथ है दैट इज हैम्परिंग। तो एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है बिकॉज बाहर से इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आता, नंबर वन। नंबर दो, ये जो पैसा आता उससे अगर जो इन्होंने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए होते हैं, जैसे कि सपोज कोई रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट घर लेते हो, पहली बार जो भी घर ले रहा है उसका इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्टेड। कोई ऑटो ले रहा है, सपोज के कोई गाड़ी ले रहा है, व्हीकल ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो उसका इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो वो पैसा अगर जो इन्होंने इस स्टिमुलस के रूप में पब्लिक के हाथ में दिया होता, तो व्हाट इट वुड हैव डन वाज कि इसका एक वायरल एडवांटेज बेनिफिट कंट्री को मिलता, बिकॉज इट वुड हैव बूस्टेड द डिमांड। और इसका अगर जो सेकेंड साइड ऑफ द इफेक्ट अपन देखें तो ये होता कि ये जो बूस्ट ऑफ डिमांड आती उससे इकोनॉमी को एक बड़ा जंप मिलता। आज से फॉर एग्जांपल अपन रियल एस्टेट सेक्टर की ही बात करें कि अगर जो इन्होंने इंटरेस्ट सब्सिडाइज की होती काफी, या इंटरेस्ट फ्री लोन्स दी होती फॉर द फर्स्ट बायर्स, इससे जो रियल एस्टेट में डिमांड आती, तो आज रियल एस्टेट जो लॉक्ड अप स्टेट में है बिकॉज ऑफ ये जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके कारण, तो उसको एक ईज मिलता, तो उसमें जितने भी कैपिटल लॉक्ड है, हो सकता है वहां से काफी कैपिटल फ्री होकर के वापस जो लेंडर्स हैं, एनबीएफसी है, बैंक्स हैं, जहां पर भी है, उन तक पहुंचती वापस।
और हो सकता है कि वो कैपिटल वापस सिस्टम में आती और यू वुड हैव गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। सेम वे ऑटो को अगर जो इन्होंने इंटरेस्ट फ्री किया होता तो इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफी बेनिफिट मिलता। आज जो भी ये ऑटो सेक्टर इज इन स्ट्रेस, वहां पर उनको काफी मदद मिलती एंड दैट वुड हैव किक स्टार्टेड। सो ये दो चार कोर सेक्टर जो हैं, जैसे रियल एस्टेट समझो, ऑटो समझो, ये जो किक स्टार्टिंग सेक्टर्स हैं, उनको अगर जो उन्होंने बूस्ट दिया होता तो बाकी के जो कोर सेक्टर्स हैं, जैसे सीमेंट है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, दूसरी इंडस्ट्रीज है, आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो है, आज माइग्रेंट लेबर जो यहाँ से मूव हो रहा है बिकॉज कि यहाँ पर स्थिति खराब होने वाली है, हो सकती है, जो भी है, दूसरे कारण के साथ साथ में ये भी एक कारण है। तो वो कारण को एक जगह ये प्रोटेक्ट कर सकते थे एंड अल्टीमेटली दैट वुड हैव एक्टेड एज अ रियल स्टिमुलस। बिकॉज अगर जब तक सिस्टम में डिमांड नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें स्टिमुलस काम कर सकता है। सो अल्टीमेटली रिवाइविंग इकोनॉमी के लिए आपको डिमांड लाना जरूरी है और डिमांड लाने के लिए ऐसे कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स की जरूरत थी और ऐसे बोल्ड रिफॉर्म्स के लिए अगर जो ऐसा कोई भी सिंपल और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते, बिकॉज बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन बैंक्स अगेंस्ट द प्लेज ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक्स would not have violated the FRBM guidelines also। जो आज अपन सब लोग चर्चा करते हैं कि इंडिया को प्रिंट नहीं कर सकती है पैसा क्योंकि ऑलरेडी फिस्कल डिसिप्लिन बैड स्टेट में है, या उसके पास लिमिटेशन ऑफ मिंटिंग मनी है, प्रिंटिंग मनी है, तो वो सारे का आई थिंक टू माय नॉलेज they would not have violated and they would have brought a sizable fresh capital into the country and would have revived the economy। सेकंड, जैसे ये इकोनॉमी रिवाइव होती, प्रोबेबली ये जो भी बोरोड कैपिटल है वो बिकॉज रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ में आपका रेवेन्यू जनरेशन भी, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, जो भी टैक्सेशन है, उसका भी यू वुड हैव गॉट अ बूस्ट आउट ऑफ इट। और वो बूस्ट के कारण आप यू वुड हैव बीन एबल टू रीपे दिस बोरोड कैपिटल अगेन टू द फ्रॉम दोज आपने जिनसे भी ये बोरो किया है। So this would have been a very bold reform. This is one of the example, but this kind of out of whack, rather than section by section, आपने इतना किया तो हम इतना करेंगे, ये करेंगे, 1000 करोड़ उसमें देंगे, लाख लाख रुपया उसको देंगे। So I think we are spreading poverty rather than bringing happiness into the country। तो ये एक golden opportunity अभी भी है गवर्नमेंट के पास, if they can come out with bold reforms that will only help the economy। दूसरा, अभी का जो स्टिमुलस है उसमें सबसे बड़ी रिस्क दैट वी आर कैरिंग इज दैट अगर जो ये स्टिमुलस काम नहीं किया, या ये स्टिमुलस जो आज भी अपन ने स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए देखा है, इट मींस दैट लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल फील कि ये स्टिमुलस इज नॉट वर्किंग। अगर जो ये स्टिमुलस ने सही दिशा में रिजल्ट नहीं दिया तो उसका द इमीडिएट रिजल्ट वुड बी दैट देयर वुड बी अ बिग स्पाइक इन एनपीएस, और वो एनपीए के स्पाइक को मैनेज करने के लिए वापस बैंक्स को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जब वापस बैंक्स को कैपिटलाइज करने जाएंगे तब वापस इनके पास फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल प्रूडेंस, वो सारे इश्यूज आई थिंक निकल करके आएंगे। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ सम बोल्ड रिफॉर्म, बिकॉज आज अपने पास में वी हैव लकीली 2 bold leaders at helm of affairs। One is our beloved PM Modi ji, who can take very bold steps, bold reformist decisions, and second is our Home Minister Mr. Amit Shah। I think ये दोनों की जोड़ी ने मिल करके अभी भी अगर जो कुछ अच्छा रिफॉर्मिस्ट डिसीजन ले करके स्टेप लेते हैं तो मुझे लगता है कि इट वुड हेल्प। अदरवाइज आज की तारीख का जो स्टिमुलस है, आई डोंट थिंक दैट वुड वर्क मच इन अ नियर टर्म, और नियर टर्म में स्टिमुलस काम नहीं करेगा तो आई थिंक वी कैन सी डिफिकल्ट टाइम गोइंग अहेड फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो आई थिंक इसके ऊपर से मुझे एक वापस वंस अगेन फिल्म का डायलॉग याद आता है जो आई थिंक आई टेकन फ्रॉम रईस फिल्म। अपने पास लकीली 2 लीडर्स एज आई सेड है, तो जो उस फिल्म का डायलॉग है रईस का कि मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग दोनों मिल करके अगर जो कुछ रिफॉर्म स्टेप लाते हैं तो आई थिंक इंडिया कैन आउटशाइन अगेन एंड वी कैन डू वंडर्स, आई फील इट। पूरा स्टिमुलस का अगर आपको एक समराइज करना हो 3-4 मिनट में, तो फिर आप समराइज
आपका क्या व्यू है समराइज करने में? स्टिमुलस को समराइज 3-4 मिनट में करने के लिए, जैसा मैं अगेन आई स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स. One is our PM who can take bold decisions and bold reforms, and second is the rest of the machinery who just follows our PM. तो समरी करने के लिए आई थिंक टू स्टिमुलेट इकोनॉमी, ease of doing business is very very important. And for ease of doing business, I think we will have to come out of the complex structure of this bureaucracy, who are the major hindrances to business houses. So, जो भी so-called अपनी agencies हैं, I think they are probably will have to remain aside till our economy comes back to the normal, or you will have to give a free environment, free kind of a setup which is supportive in nature for developing business on the one side to business community. Second side, whatever जो भी difficulties हैं, आपको वोकल फॉर लोकल करने के लिए आज जो भी सेटअप, किसी को भी इंडस्ट्री लगानी है, किसी को भी सपोज यहाँ पर बिजनेस करना है, तो जो अपने आज मैंने आपको एग्जांपल एक एम्प्लॉय का दिया, वही उसी हिसाब से सारे बिजनेसमैन भी सफोकेट कर रहे हैं. तो आपको इस एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना पड़ेगा. ईज ऑफ बिजनेस में आई थिंक जो अपने प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उस दिशा में काम करना पड़ेगा. तो जाकर के मुझे लगता है कि एनी दिस काइंड ऑफ स्टिमुलस विल वर्क एंड द इकोनॉमी विल गेट स्टिमुलेटेड इन दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइम. तो मुझे लगता है कि जो अपने पास पहले के टाइम पे दो नारे थे, जय जवान जय किसान, मुझे लगता है कि अपने प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं ये एक अनाउंसमेंट और करना पड़ेगा, जय जवान जय किसान और जय व्यापारी. जब तक व्यापारी को आप इंक्लूड नहीं करोगे एक देश की पूरी व्यवस्था में, और उनको आइसोलेट रख करके अगर जो खाली आप पॉलिटिकल मोटिव्स, पॉलिटिकल वोट बैंक को संभालने के चक्कर में डिसीजंस और ये जो भी सो कॉल्ड रिफॉर्म्स, सो कॉल्ड पॉलिसी डिसीजंस लेते रहेंगे, तो प्रोबेबली आई थिंक इंडियंस मे नॉट अप्रिशिएट द वे थिंग्स आर राइट नाउ मूविंग इट. I think the politicians will have to or need to leave vote bank tension aside for a while, because if India outshines happy, probably if India outshines happy and Indians, अगर जो happiness वापस आती है, तो Indians will automatically vote for all these visionary leaders back. तो मुझे लगता है कि जो वोट बैंक है, वो वाली जो मानसिकता है उसको साइड में रख के probably अभी इंडियन इकोनॉमी और फ्रीडम टू बिजनेसेस, ये तीन चीज पे ध्यान दे करके, एंड इफ दे कैन स्टिमुलेट बैक और कम आउट विथ मोर सम मीनिंगफुल स्टिमुलेटिंग डिसीजंस, तो हो सकता है कि दैट कैन हेल्प अस. ओके. और सर, पिछली बार जब इंटरव्यू होता तब आप बुलियन पे बुलिश थे और क्लाइंट को दैट हैज गिवन अ गुड रिजल्ट्स. सो इन द वेल स्टेज क्लाइंट्स आर आस्किंग आपका फर्दर क्या व्यू है? देखो, मुझे भी ऐसा आई थिंक आई ऑल्सो डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि जो मैंने व्यू दिया था कि बिलियंस में जैसे गोल्ड और सिल्वर में वी में सी अ स्पॉट इन प्राइसेस, वो इतना शॉर्ट टाइम में आ जाएगा. बट आई थिंक द वे परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज गेटिंग डिवैल्यूड एंड द वे लॉट ऑफ स्टिमुलस इज कमिंग इनटू द मीनिंगफुल स्टिमुलस इन अदर इकोनॉमीज इज कमिंग इनटू द सिस्टम, तो दैट वो काफ़ी लिक्विडिटी मार्केट में लेके आएगा. तो सारे एसेट क्लासेस को और उनके वैल्यूज को बढ़ाना चाहिए. एंड एज आई सेड, द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट जो काम करेगा, दैट वुड बी योर मनी पावर, परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी विल गेट डिवैल्यूड, तो ऑटोमेटिकली द एसेट क्लासेस विल इन्फ्लेटेड. बट जैसा व्यूअर्स को मैं एक ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि वेल स्ट्रीट हैज वेल एफिशिएंट relationship managers dedicated to them. There are a lot of actions which keep happening into markets. तो जब भी ऐसा कोई भी एक्शन हमको नोटिस में आता है, तो
So we do convey this message to clients. So I request all clients to do remain connected with relationship managers, and मैं relationship managers को भी advise and suggest करूँगा कि जो भी अपने यहाँ पर discussions होते हैं या जो भी अपने यहाँ कोई भी इस kind of policy views आता है, तो they can ultimately communicate to the clients. ओके, तो सर अभी अपने व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस है, तो मैं आपको अभी एक व्यूअर से उसने क्वेश्चन पूछा है कि अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे एमएसएमई के लिए स्टेप्स लिए हैं, इस बार भी 10,000 करोड़ जितने दिए हैं एमएसएमई, तो क्या ये एग्जीक्यूट होएगा? क्या ये एमएसएमई को मिलेगा एग्जैक्टली? Can you repeat 10,000 करोड़ किसके लिए आप बताना? एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हाँ, तो गवर्नमेंट ने इससे पहले भी बहुत सारे स्टिम्युलस दिए हैं, या तो फिर कोई बेनिफिट दिया है एमएसएमई को। इस बार वापस गवर्नमेंट ने एमएसएमई को स्टिम्युलस दिया है 10,000 करोड़ का, पर वो देखा गया है कि स्टिम्युलस देना और एंड एंटरप्रेन्योर और एंड बिजनेसमैन तक पहुंचना वो अलग बात है। तो अभी तक कभी तक पहुंचा नहीं है एमएसएमई का स्टिम्युलस, कभी बिजनेसमैन तक पहुंचा नहीं है। तो इस बार आपको क्या लगता है, ये पहुंचेगा? देखो, इसका एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे ना, तो इस बार क्योंकि स्टिमुलस पूरे पैकेज में अपन देखें तो ये 2-4 चीजें ही हैं जो मिलकर के स्टिमुलस बनाती है, जहां पर गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली गिविंग समथिंग आउट ऑफ देयर कॉफर्स। तो डेफिनेटली वो पुश करेंगे स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी में कि ये पैसा अल्टीमेटली एमएसएमई तक जाए। बट जो बीच में लेवल्स हैं, जैसे कि एज आई सेड कि अपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, जो पहले तो डिसीजन मेकिंग में अगर जो टाइमली डिसीजन ले लें कि एमएसएमई तक पहुँचाने के लिए क्या क्या डिसीजन ले ले हैं, क्या पॉलिसीज लेनी है, बिकॉज जहाँ तक मुझे खबर है या समझ है, वहाँ तक ये अनाउंसमेंट होने के बाद में भी अभी तक बैंकर्स हैव नॉट बीन गिवन प्रॉपर डायरेक्टिव्स कि ये जो अनाउंसमेंट किया है फॉर गिविंग लोन्स टू एमएसएमई, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या गाइडलाइन है। तो वहाँ पर अभी तक कोई एक्शन दिख नहीं रही है, नंबर 1। हो सकता है इन शॉर्ट गवर्नमेंट आ भी जाएगी उनके पास में गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स ले करके, बट वो कितना खुल करके एमएसएमईज को लेंड करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि जिस हिसाब से बैंकर्स के साथ डिस्कशन हो रहे हैं, तो एक जो लार्ज फीलिंग ये आ रही है कि भले ये गवर्नमेंट बैक्ड और गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स हैं, बट अल्टीमेटली जब ये डिफॉल्ट होती है तो गवर्नमेंट के पास से ये पैसा वापस लेना इज अ वेरी टीडियस टास्क। और जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वुड नॉट बी हैप्पीली डूइंग दिस, अगर जो इस गाइडलाइन को कोई फॉलो करेगा तो खाली पब्लिक सेक्टर बैंक्स एग्रेसिवली फॉलो करेंगे। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अभी फाइनेंशियल हेल्थ देखें तो इट इज सो डिटीरियोरेटेड कि उसमें किस लेवल तक ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अल्टीमेटली एमएसएमई को, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और सर दूसरा कि अगर जो मजदूर है, ठीक है, वो अभी गुजरात छोड़ के जा रहे हैं, उसके वतन जा रहे हैं, तो फिर अपने उसकी वजह से अपने कुछ प्रोडक्शन में फर्क पड़ सकता है? हाल फिलहाल तो पड़ा है, और आने वाले शॉर्ट पीरियड में तो पड़ेगा। बट जैसे ही अगर जो ये बिजनेस वापस बैक टू नॉर्मल आता है, हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे ही ये चेन पूरी रिस्टार्ट होती है, तो उसके 2 कारण हैं कि ये मजदूर वापस लौट करके जहाँ थे कर्मभूमि में, जन्मभूमि से वापस कर्मभूमि की तरफ उनको आना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि आप अगर जो डेमोग्राफिक्स देखोगे तो ये जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं वो या तो राजस्थान के हैं, या यूपी के हैं, या बिहार के हैं, या बंगाल के हैं। आज की स्थिति अगर जो अपन देखें तो इन चारों स्टेट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो दैट इज नॉट दैट मच, ठीक है। तो अभी तो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज गवर्नमेंट उनको फ्री फूड दे रही है, बाकी सारी बेनिफिट्स दे रही है, तो उन लोगों ने प्लस उनकी फैमिली का प्रेशर है कि भाई जहान है तो जहान है, उन सारे माहौल के कारण से वो लोग चले गए। बट जब वापस पैसे की दरकार रहेगी,
वापस रोजगार की दरकार रहेगी। तो ऑप्शंस जो हैं वो ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वही हैं। तो आई थिंक दे विल हैव टू कम बैक टू दिस स्टेट्स एंड जैसे ही बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी होती है बिजनेस की, तो ये सारे माहौल भी चेंज हो जाते हैं, सेंटिमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं, एंड आई थिंक लेबर वुड कम बैक, बट फॉर शॉर्ट टर्म this problem will have to be faced by industries and will have to be faced by rest of the people. ओके। अभी सर जो कंपनीज है, ठीक है, वो चाइना से बाहर जा रही है, प्रोडक्शन निकाल रही है चाइना से, तो क्या उसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को मिल सकता है? बहुत ही बड़ी होप है आज की तारीख में इंडिया के पास कि चाइना से जो भी इंडस्ट्रीज बाहर जा रही है वो इंडिया में आए, और गवर्नमेंट भी अपना अथक प्रयास कर रही है इस दिशा में। जैसे मैंने बीच में कुछ एक दो प्रेजेंटेशन देखे थे जिसमें आई थिंक बेल इज टेकिंग वेरी एग्रेसिव मूव फॉर इन्वाइटिंग ऑल दिस कंपनीज टू इंडिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास तो है कि ये सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी हो वो एटलीस्ट उसमें से कुछ प्रोपोर्शन यहाँ आए। तो अपन ये गिविंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि उनका प्रयास कुछ हद तक जरूर सफल होगा और इंडस्ट्रीज यहाँ आएगी। बट आई थिंक अभी जो चाइना से इंडस्ट्रीज मूव हो रही है उसमें जिस हिसाब से न्यूज़ मिल रही है उस हिसाब से देयर आर अदर कंट्रीज आल्सो व्हिच हैव बिकम एग्रेसिव in inviting those companies to their countries, जिसमें इंडोनेशिया इज वन, और थाईलैंड इज वन, वियतनाम इज वन, बाकी की जो भी ये साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं वहाँ पर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो भी कर रही है। एक दूसरा एस्पेक्ट भी इसमें है कि आज इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस तो यूएस, यूके, यूरोप, ऑल दीज कंट्रीज लीडर्स have started realizing, plus their citizens have started realizing and have started talking कि manufacturing, जैसे जापान, कि manufacturing has to be back to their countries because ultimately that will help their economies and countries also. तो वो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि उनकी कंट्री में भी जाए यहाँ से वापस, बट बिकॉज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज जो वहाँ पर डिसएडवांटेज है और इंडिया को एडवांटेज है, आई थिंक इंडिया इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी to bring those countries to those companies to India। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ हद तक इसमें आई थिंक हमें सफलता भी मिलेगी, बिकॉज आई थिंक दैट इज द नेसेसिटी ऑफ दोज कंपनीज ऑल्सो कि दे चूज इंडिया एज अ डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स। खाली ईज ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट हिंड्रेंसेस का है तो वी कैन होप के ओवर अ पीरियड आई थिंक गवर्नमेंट एंड मशीनरी विल ऑल्सो रियलाइज business has to be given a freedom। सर अभी रियल एस्टेट और फाइनेंशियल मार्केट के लिए और अभी कुछ बूस्ट आ सकता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस है? वो तो मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर या फिर एमओएस ही बता सकते हैं कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बट आना जरूर चाहिए बिकॉज अभी जो भी अनाउंसमेंट्स हैं उसमें रियल एस्टेट को कोई भी बूस्ट उन्होंने दिया नहीं है, मीनिंगफुल बूस्ट दिया नहीं है। एंड रियल एस्टेट इज अ सेक्टर because of two reasons requires a boost। Number one, lot of capital has been blocked into that sector। तो आज उस सेक्टर को जब तक वापस आप रिलीफ या रिलीज नहीं करोगे तब तक जो उसमें कैपिटल ब्लॉक्ड है वो वापस सिस्टम में फ्लो करना नहीं चालू करेगी, नंबर वन। नंबर टू, इट इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर विच गिव्स एम्प्लॉयमेंट, तो इसके हिसाब से भी यू नीड टू रिवाइव दिस सेक्टर। एंड थर्ड इज all four sector industries are linked with real estate। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को रिवाइव करना पड़ेगा ही आगे जा करके। अब किस फॉर्म में करते हैं, कैसे करते हैं, कितना उसमें सफलता मिलती है, और अभी जो लॉक्ड जो इश्यूज अभी हैं जैसे लॉक्ड कैपिटल प्लस जो इन्वेंट्री अभी स्टक्ड अप है उसको कितना फास्ट ये लोग रिलीज करवा पाते हैं थ्रू दैट मेजर्स, that is going to become a major factor that will ultimately either give applause to government or will be a criticism for government। Okay। सर स्टिम्युलस आया तो स्टिम्युलस के बाद एफआई का फ्लो बढ़ सकता है अभी इंडिया में? एफआई का फ्लो तो देखो जब तक इकोनॉमिक होप नहीं बढ़ेगी ना
तब तक बढ़ना मुश्किल है। और स्टिमुलस का और एफआईआई का आज की तारीख में मुझे कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं दिख रहा है इन शॉर्ट टर्म। जो रिफॉर्म्स के मेजर्स अनाउंस किए हैं, वो रिफॉर्म्स के मेजर्स अगर जो ग्राउंड पे आते हैं और वो रिजल्ट दिखाते हैं, एंड इफ इकोनॉमी रिवाइव्स बैक, विच ऑन द प्रेजेंट स्टिमुलस पैकेज इट लुक्स टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन एक्टिविटी, आई वुड से। शॉर्ट टर्म में कोई स्टिमुलस किसको बोलते हैं? स्टिमुलस इज लाइक वर्क्स लाइक अ स्टेरॉइड, कि आपने किसी बॉडी जो रिएक्ट नहीं कर रही है या किसी को जहाँ पर के यू नीड सम फास्ट एक्शन, उसको आप स्टेरॉइड देते हो, वैसे ही स्टिमुलस वर्क्स इन दैट वे। अभी का जो स्टिमुलस पैकेज है उसमें देयर इज नथिंग ऑफ ए एलिमेंट ऑफ अ काइंड ऑफ स्टेरॉइड इन इट। तो एफआईआई का पैसा इज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि एफआईआई का पैसा शॉर्ट टर्म में आना, unless and until some more measures comes out, I have my own reservation. सर अभी देखिए तो पूरा इंडिया है जो सभी सेक्टर है वो पूरा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो ये वर्क फ्रॉम होम से कोई ऐसा सेक्टर है या तो कोई ऐसा फील्ड है जिसको बेनिफिट हो सकता है ज्यादा? वर्क फ्रॉम होम से सेक्टर सेक्टर जो बेनिफिट करेगा ऐसा? मतलब ऐसा कोई है, मतलब जैसे कि आईटी सेक्टर, हाँ, तो ऐसा कोई कि अभी पूरा पूरा सर्विस सेक्टर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है अभी, हम्म, तो ऐसा कोई सेक्टर है जिसमें ये बेनिफिट हो सकता है? the direct and major beneficiary is your information and technology, मतलब आईटी आईटी रिलेटेड जो सेक्टर है वो आई थिंक देयर अपन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि द ट्रेंड एंड द डायरेक्शन मे चेंज ऑफ दिस सेक्टर एज अ होल फॉर अ परमानेंट पीरियड। बाकी के सेक्टर में तो हो सकता है कि अभी कुछ पीरियड के लिए वर्क फ्रॉम होम है, बट आगे आने वाले समय में पार्शली रहेगा, बट मेजरली यू विल हैव टू गेट बैक टू योर ऑफिस रूटीन। बट ये एक सेक्टर ऐसा है आईटी सेक्टर जहाँ पर आई थिंक द ट्रेंड इन परमानेंसी वुड चेंज, जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कैन बी अ मेजर ट्रेंड। ओके सर, if anyone have a question they can ask in the dialog box. सर अगर करंट सिचुएशन से अभी कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे ज्यादा पुश मिलेगा? From this stimulus, you mean to say? No, after this, after lockdown. See, there would be certain trends or the forms of businesses which will change. The one business that I feel is जो पहले like packaging industry that can get a major boost of it, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो चाइना से इंपोर्ट होता था इंडिया में, उस सेक्टर में या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आई थिंक वी कैन सी अ ट्रैक्शन गोइंग अहेड because of two reasons. One is as world is following, we'll also follow. We need to reduce dependence on China. Number one, and number two, अगर जो वोकल फॉर लोकल फैक्टर को इफेक्टिव होना है, तो दिस इज वन ऑफ द इमीडिएट अपॉर्चुनिटी दैट इंडियन गवर्नमेंट विल ट्राई टू पुश थ्रू। तो मुझे लगता है कि जो भी सेक्टर्स या जो भी कंपनीज which are right now dependent on India, China, और उसका अगर जो आप यहाँ पर कोई ऑप्शन दे सकते हैं या उसका रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, तो दैट वुड बी अ मेजर एक्टिविटी दैट वुड बी हैपनिंग इन नियर टर्म। सेकेंड इज एज आई सेड के आपके पैकेजिंग इंडस्ट्री और ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें यू विल हैव, देन योर ऑनलाइन बिजनेसेस विच एवर आर देयर, they will I think they will get into a fashion kind of a thing. You will be getting more convenient to that modes of shopping or businesses. Okay sir, तो सर
So we will conclude the session over here. Thank you for your time. I also thank all the viewers for listening to the views that I have presented, and I hope I had uh, meaning in what I communicated. Let's hope for the best for India and Indian economy, and let's wish all the best to each and everything. Thank you.